as psychology, right? So 15% is your technical analysis, 15% approximately is your risk management, and the rest 70% is your technical, sorry, psychology. So now, if psychology is 70%, so we definitely need to master that, right? So we definitely need to master our psychology. So how we master our psychology? Do you know any kind of thing that will help us to master our brain? If anyone can know, just let me know. What can we do if we want to control our brain? Like if we want to control our emotions, emotion के control में ना आके, if we need to control the emotion, then how can we do? Do you have any reason, answers? Let me know. Don't overtrade. Don't overtrade. Meditation. Meditation, right? So the thing is that we all, as a trader, we need to do one thing that is known as meditation. And now, how will you do meditation? What is the impact of meditation in your daily trading life? So what happens that when we meditate, so the actual purpose of meditation is to keep your brain calm, right? जब आप अपने दिमाग को शांत रखोगे इन द सेंस देयर शुड बी नो एक्सटर्नल थॉट्स इन योर ब्रेन, दैट इज स्टेट ऑफ मेडिटेशन, राइट? अब इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होता है, इफ़ यू आर कंट्रोलिंग द थॉट्स टू कमिंग इनसाइड योर हेड, विच मीन्स दैट यू आर टेक्निकली कंट्रोलिंग योर ब्रेन, दैट व्हाट इट विल प्रोसेस और व्हाट इट विल नॉट, राइट? सो इन ऑर्डर टू डू दैट, अब ट्रेडिंग में ये आपकी कैसे हेल्प करता है? सो ट्रेड में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, ओके, जस्ट से दिस, okay, so my screen is visible, right? Yes, no? Yes. Great. So my screen is visible to you. Great. So the thing is that आप लोग इस पर्टिकुलर ट्रेड को देख सकते हैं, अगर इफ़ यू जस्ट सी दिस, सो यहाँ पे इट वॉज फॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न विच वॉज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट? सो इसने यहाँ पे ब्रेक किया, जस्ट सी दिस, इट वॉज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसने इसको ब्रेक किया. नाउ व्हाट हैपेंस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी. अब यहाँ तक तो आपने, अब यहाँ तक तो आप व्हाट इज दिस, ओके, तो यहाँ तक क्या होता है कि यू जस्ट शॉर्ट दिस. सो फॉर दैट you need to understand first of all what is short, what is long, what is buy sell. So we are just focusing, first thing is our technical terms of forex, right? So after that technical terms, I will say you how to meditate. I will share some videos that you will watch it and you will start doing meditation for your daily, in your daily life. Definitely वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, इट इज़ लाइक 2-3 मिनट, 5 मिनट भी आपने किया एक दिन में, सुबह उठना है और करते हो, so definitely it will give you some great impact in your trading career, right? तो अब क्या होता है कि let's talk about some forex terminology first, और any kind of technical market में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो there is a thing that is known as buying, there is a thing that is known as selling. So I guess we have discussed कि हम लोग कुछ चीज़ों को कम में बाय करके ज़्यादा में अगर बेचते हैं, so we gain profit. If we sell at high and buy at low, so we also get some profit out of it. Now how can we do this? uh, just a second, I guess I need to connect something, just a second.
Okay, so my screen is visible, right? Yes. Okay. Okay, it is opening up. Okay. And this behavior is not tolerable. So where we were? ये अपना पाई चार्ट रहा. Videos. Yeah. So it is, we have just talked about 70%, then 15%, and then 15%. So this 70%, what we have said, it is psychology. 15% is our technical analysis, and the rest 15%, if you talk about, so the rest 15% is your risk management, right? So we will start definitely with our technicals, and we will look on some psychological aspects. So psychological aspect में हम लोगों ने अभी बात किया मेडिटेशन के बारे में, right? कि how it will affect our day to day life in our trading. But if we talk about technical aspects, right, the technical aspects which are also really important. So किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों को मैं बताऊं कि देयर इज़ अ थिंग दैट इज़ नोन एज लॉन्ग. अब लॉन्ग का मतलब आप उसको बाय भी बोलते हैं. सो लॉन्ग इज ऑल्सो नोन एज बाय. सो इफ़ यू आर गोइंग टू बाय समथिंग, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से here any trader is like, just a second. If any trader says that I am long right here, which means that he is on buy position at this particular point. So if he buy at this position, so price goes up and he book his profit. There are two types, definitely दो तरह से प्रॉफिट बुक किए जाते हैं मार्केट में. अगर ग्राफ अपना बढ़ता है, दिस थिंग इज नोन एज ग्राफ. हम लोगों ने पहला दिन देखा कि ये ग्राफ होते हैं. अब ग्राफ में क्या होता है कि दो तरीके से प्रॉफिट बनाए जाते हैं. पहला तरीका कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो हम लोग एनालाइज करते हैं कि अब बढ़ने वाली है एंड वी बाय. अगर हम लोग इस पोजीशन पे बाय करते हैं और यहाँ तक मेरा ग्राफ ग्रीन में चला जाता है, सो बाय इन ग्रीन विच मीन्स दैट वी आर इन प्रॉफिट, राइट? बाय विथ ग्रीन, इफ़ यू आर बाइंग एंड प्राइस गोज अप, सो डेफिनेटली यू आर मेकिंग प्रॉफिट. नाउ द थिंग इज दैट कि अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ पे अगर आपको पता चले कि आपको बेचना है किसी चीज़ को, विच मीन्स दैट यू आर शॉर्टिंग. शॉर्ट मीन्स सेलिंग ऑल्सो, राइट? सो इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग एट हाई and you are planning it to buy at low, so there is two options that is present on your MetaTrader, that one is short and one is long, or you can say there is also buy or sell, right? So buy and sell, there are two kinds of things. मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है ना? क्योंकि जिनको नहीं दिख रही है वो आप लोग उस पर जाके यहाँ क्लिक कर लो या पिन कर लो मुझे, तो अब मैं आपको विजिबल हो जाऊँगा, राइट? दिख रही है. ग्रेट, Visible है. विजिबल है ना? सो शॉर्ट इज ऑल्सो नोन एज सेलिंग. सो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे मुझे सेल करना है? क्योंकि देखो, सेल अगर करते हो और प्राइस फॉल होती है, सो डेफिनेटली यू विल मेक प्रॉफिट. बाय करते हो, प्राइस राइज होती है, सो देन एंड ओनली यू विल मेक प्रॉफिट. ओके, राइट नाउ I am buying this particular thing, right here I have buyed, price is going right at this position, right? So definitely I am making some sort of profit right here. Okay, अब क्या होता है कि ये जो बाय और सेल अपन करते हैं, सो इसको करते हैं लॉट्स में. लॉट्स इज़ लाइक, जैसे मैं बताता हूँ, अगर आप लोग कोई शेयर खरीदते हो, ठीक है, तो अगर आप लोग कोई शेयर खरीदते हो, सो लेट्स से एक शेयर की प्राइस है, वन शेयर, इसकी जो कॉस्टिंग है वो 100 रुपीज़ है. ओके, अब अगर एक शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ है, आपने खरीदी 10 शेयर, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी हो गई? उसकी कॉस्टिंग कितनी हो गई? 1000, राइट? सो 1000 इट्स कॉस्टिंग. अब ये जो 10 शेयर है,
आपने एक शेयर खरीदा और आपने 10 शेयर खरीदा, इस शेयर की जो प्राइसिंग है वो थी 100 रुपीज़। सो 100 से बढ़ के अगर ये शेयर 110 रुपीज़ पे चला जाता है तो एक शेयर का प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 10 rupees. 10 रुपीज़। और 10 शेयर के प्रॉफिट कितने हुए? 100 rupees. राइट। सो फॉरेक्स मार्केट में जो ये मूवमेंट होती है, यहाँ पे मूवमेंट रुपीज़ में हो रहा है। दिस इज़ इन इंडियन मार्केट और एनी काइंड ऑफ शेयर मार्केट, मूवमेंट इन रुपीज़, यूएस डॉलर, समथिंग लाइक दैट। फॉरेक्स में जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक शेयर लिया और जो मूवमेंट हुई वो 10 रुपये की मूवमेंट हुई। सो व्हाट वी डिड हियर, आवर मेजरिंग क्वांटिटी वाज रुपीज़, तो हमने शेयर प्राइस को जितना मूवमेंट हुआ था उतना से शेयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया एंड वी रीच्ड कि मेरा जो है वो पोजीशन, मतलब प्रॉफिट क्या हो रहा है, राइट। एक शेयर मैंने लिया, 10 रुपये प्रॉफिट हुआ। एक शेयर लिया, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया? 10 रुपये का। यही मैंने 10 शेयर लिया और 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में। आई बात समझ में? तो यहाँ पे Yes. जो ये आपका है, ये आपका क्वांटिटी डिनोट करता है एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ योर मेजरमेंट। सो मेजरमेंट इन रुपीज़ इन इंडियन मार्केट। Now as we are trading in forex market, so there is a thing that is known as lot and there is a thing that is known as pips. Now what is lots and what is pips? Okay, let's see that what is lots and what is pips. So lots and let me write pips. So पिप्स अगर मैं बात करूँ, सो पिप्स इज परसेंटेज इन पॉइंट्स। परसेंटेज इन पॉइंट, व्हाट आई जेन्युइनली मीन बाय दिस, सो इफ यू राइट द फुल फॉर्म, सो पिप्स इज परसेंटेज इन पॉइंट। कोई आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछने वाला है, आपको बस मतलब समझना है कि ये एक्चुअली चीज़ क्या होती है, काम कैसे करती है। ओके, एंड वी हैव लॉट्स। सो पिप्स जो होता है, जैसे इंडियन मार्केट में रुपीज़ में मूवमेंट हो रही थी, 1 रुपया बढ़ रहा था, 2 रुपया बढ़ रहा था, 3 रुपया बढ़ रहा था, यहाँ पे जो है वो पिप में मूव करता है। मतलब इट मूव्स 1 पिप, 2 पिप, समथिंग लाइक दैट, 3 पिप, 4 पिप, 550, 10, 100, whatever the measurement amount, so it is measured in pip. So in simple word, you just understand it is a measuring quantity. Now we will come to our lots. तो जैसे अपना उधर था कि हम लोग देखते आ रहे थे कि एक शेयर बाई करते हैं, वो जितने रुपये का मूवमेंट देता है उतना मेरा प्रॉफिट हो जाता है, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है, वी हैव 3 काइंड ऑफ लॉट्स। वन इज नोन एज माइक्रो, वन इज नोन एज मिनी and one is known as standard lot. Okay, so what are micro, mini and standard lots? Okay, so let me show you that if I'll talk about lots, okay, so lots definitely we have considered micro, mini and we have standard lots. So in micro, the value of lot, it is written as 0.01. So in micro it contains 0.01 lots, right. In mini it contains 0.1 and standard lot value is 1. And we have definitely pips. So how we combine and calculate that what is the movement, what is my profit, what is my loss. So if micro lot, that is of 0.01, if it moves 10 pip either in your direction or not in your direction, so if it moves 10 pip in your direction, so for example if you buy something, okay, so let's see that here, just a second everyone, you guys can note it down, it is important, right. Now, Yes. now what happens that at this particular position, let's say that you have buyed, definitely you know that it is going to go up. I will
later in on the strategy session we also discuss that why it is going up. In price action we will understand that why candles are going up. So these things we will understand, but just right now just understand that if we are buying right here, what is the text? Okay, so the thing is that if we are buying it and it is going up, so this is movement, whatever the movement it is, so it is calculated in pips, right? So the movement is in pips. Now we are buying with some lot sizes and it goes up, we get some profit. So let's say that we buyed here and it goes up plus 10 pips in my direction, plus 10 pip in my direction. And if I buy 0.01, so 0.01 is mini, micro or standard? Which one is that? Micro. Micro. So if I buy a micro lot and it goes 10 pip up in my direction, I will get profit of $1. Let's say that if I sell micro lot here, right? If I sell micro lot here, so price was supposed to go down if we need profit, but price is going up. So if price is going up and we shorted at that, right? So we shorted that and price is going up, which means that we are definitely facing some losses. So if we sell at this position, price goes up, we make some losses of 10 pips. So that particular loss is of minus $1, right? If we increase the lot size, so from micro we switch to mini and we increase the lot size to 0.1. So if 0.1 lot, it goes 10 pip in your direction, it will give you profit of $10. If it goes against you, it gives you loss of minus $10. So I guess now you know the answer, that what will happen if one lot you will buy. So what will be the profit? 100. So it is $100 profit. And if you sell, so if you let's say sell here, price goes against in your direction, so definitely you are getting loss of minus $100, right? आई बात, इतनी बात समझ में सबके आ गई या इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? आगे सर. ग्रेट. सो आपको पता चल गया कि 0.01, 0.1 और 1 को पहले बात तो क्या कहते हैं? मिनी, माइक्रो एंड स्टैंडर्ड. ये 10 पिप आपके डायरेक्शन में मूव करती है, आपको मिलता है $1. ये 10 पिप मूव करती है आपकी डायरेक्शन में तो आपको मिलता है $10. और ये 10 पिप मूव करती है आपकी डायरेक्शन में तो आपको मिलता है $100. इतनी बात समझ में आ गई सबको? Yes. द सेम अमाउंट विल गेट रिवर्स अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में मूव नहीं करता है. अगर ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, सो इट विल बी माइनस, माइनस एंड माइनस, राइट? नाउ ये हो गया आपका लॉट्स और ये हो गया आपका प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट, राइट? जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा. अब ये तो बात हो गई, बट हम लोगों ने एक चीज़ रास्ते में बहुत बार नोटिस किया कि ये कुछ तो भी पिप है. पिप्स, पिप्स, पिप्स मूवमेंट, पिप्स मूवमेंट. व्हाट इज पिप्स मूवमेंट, राइट? चलो देखते हैं पिप्स कहते किसको हैं. ओके, अब जैसे ही अपन आते हैं चार्ट पे, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है 1.77929. वही सेम डेटा यहाँ भी लिखी हुई है, राइट? 1.7792, 1.77 लेट्स से 92. ये फ्लक्चुएट होते रहती है क्योंकि प्राइसिंग, अगर मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं तो लेट्स से कोई इंडियन स्टॉक है, उसकी प्राइसिंग 100 रुपीज़ है, वो 100.06 होती है, 101 रुपीज़ होती है. सो प्राइस मूव्स लाइक दिस व्हेन इट गोज अप. बट इफ़ वी टॉक अबाउट फॉरेक्स, सो फॉरेक्स में प्राइस पिप्स में मूवमेंट होती है. अब पिप्स मूवमेंट कैसे होता है मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखोगे, एक मिनट मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको. ओके, सो अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखोगे, सो वी हैव 1.77904, 1.77904
लेट्स से 1 1. सो देयर इज ए स्मॉल डिजिट, राइट. तो सबसे पहला काम है इसको नेग्लेक्ट कर देना. तो इसको भूल जाओ कि ये कुछ होता भी है. तो पाँचवां डिजिट जो होता है ना उसको कर दो नेग्लेक्ट. अब जैसे ही मैंने पाँचवां डिजिट को नेग्लेक्ट किया तो अब मेरे पास क्या बच रहा है 1.7792, राइट. तो अब जो ये 4 डिजिट है ना ये हो जाते हैं पिप्स. इसको और सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूँ. 4 डिजिट पिप्स हो जाते हैं. व्हाट आई मीन कि अगर इसकी वैल्यू 92 से बढ़ के 1.77, लेट्स से अभी कितनी चल रही है 93 चल रही है, तो कितने पिप का मूवमेंट हो गया 1 pip. 7792 से 7793 पे गई. सो यहाँ पे मूवमेंट हो गया अपना 1 पिप का, राइट. यही अगर 1.7792 से घट के 1.7782 पे आ जाती कितने पिप का मूवमेंट हो गया Minus -10 10 पिप, pips. राइट, अगेंस्ट योर डायरेक्शन. तो आपको ये 4 डिजिट देखना है इसमें, ठीक है. अब 4 डिजिट अगर नहीं देखना है तो आप 2 डिजिट भी देख सकते हो. ये लास्ट के जो 2 डिजिट है ना उस पर ध्यान रखो. 93 से 92 आया, 1 पिप का डाउन साइड, क्योंकि ये जो थर्ड डिजिट है उसको मूव करने के लिए इसको 100 पिप का मूवमेंट देना पड़ेगा. इसको मूव करने के लिए उसको 1000 पिप का मूवमेंट देना पड़ेगा. 1s 10s 100 एंड 1000. आई बात समझ में. सो इफ़ इट इज़ 1.7794, सो अगर ये 10 पिप मूवमेंट करता है डाउन साइड, सो इट इज़ 1.7784, राइट. 94 के बदले 84, राइट. अगर ये 100 पिप का मूवमेंट देता है सो 1.7684. तो उसमें तो हम लोग ये 100 वाला कंसिडर करेंगे, राइट. 1s 10s 100. सो ये 794 से अगर 100 पिप डाउन साइड मूवमेंट होती है तो कितना होगा 694, सॉरी, 6 राइट. सो 694, 794 694, 100 pip movement. And if the particular pair gives 1000 pip movement in downside, so it will be 1.6794, because if you add 1000 to it, so it will be 1.7794. आई बात समझ में. what is the valuation 1000 100 10s and 1s 10s 100 and 1000, right. क्लियर टू ऑल. Yes sir. Yes sir. तो यहाँ पे जो अभी ये वैल्यू कितनी चल रही है 1.7796, राइट. सो लेट्स से 1.7796, और हम लोगों ने जब देखा था उस समय वैल्यू क्या चल रही थी 1.7794, लेट्स से 4. सो 1.7794 से 1.7796 पे वैल्यू गई, तो कितने पिप का मूवमेंट हुआ 2 पिप्स का मूवमेंट आपका हो गया. अब 2 पिप का मूवमेंट हुआ, और अगर आपने लॉट साइज जो उठाया था वो 0.1 का उठाया था, मतलब आपका जो लॉट है वो मिनी लॉट है, तो कितने का प्रॉफिट होगा $2. $2 या कुछ और, किसी और का आंसर. $1. $20. $1, $20. Shows loss. अरे स्प्रेड को हटा दो अभी. $20 और ओके. सो लेट मी मेक इट मोर क्लियर, ठीक है. देखते हैं इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं. 1.7796 पे आ गई है प्राइसिंग, पहले थी 1.7794 पे. इस बात को तो समझ में आ गया कि ये जो मूवमेंट हुई है कितने पिप की हुई है 2 पिप की. लॉट साइज की जो मैटर है उस मैटर को आप ध्यान से लिख लो. 0.01 का लॉट साइज जो भी हो है वो अगर 10 पिप का मूवमेंट देता है सो इट विल गिव $1 प्रॉफिट और लॉस. अगर तो डेफिनेटली अगर ये 1 पिप का मूवमेंट देगा तो कितने डॉलर का प्रॉफिट देगा अपने को 0.10. 0.1, 1. right. So it gives 0.1. now this is for micro definitely. now 0.1 अगर ये 10 पिप का मूवमेंट देता है तो ये देता है $10 का मूवमेंट. तो 1 पिप के मूवमेंट पे कितना डॉलर देगा ये
$1. $1, राइट. नाउ इफ वन स्टैंडर्ड लॉट ये 1 का होता है, अगर ये 100 पिप सॉरी ये 10 पिप पे $100 दे रहा है, तो ये 1 पिप पे कितने डॉलर का प्रॉफिट देगा? $10. $10 का ये आपको देगा प्रॉफिट. सो एज ऑफ नाउ वी हैव टेकन वन माइक्रो लॉट मिनी लॉट एंड आवर मूवमेंट इज ऑफ 2 पिप्स. तो अपने को कितना का प्रॉफिट हो गया? $2. $2. करेक्ट. $2. Yep. Everyone got this? Great. So that's how we calculate our profits and losses, right? Sir, once repeat it. Sorry? Sir, once again repeat it, sir. क्या समझ में नहीं आया इसमें? Once again repeat it. नहीं, समझ में क्या नहीं है वो बताओ. Sir, profit and losses. अरे प्रॉफिट एंड लॉसेस. ओके जस्ट सेकंड यार, कोई ज्वाइन हो रहा है क्या? ओके प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है यहाँ देखते हैं. तो मूवमेंट समझ में आ गई. ये पिप का मूवमेंट जो हुआ, लॉट साइजेस आप लोगों को समझ में आ गई, माइक्रो मिनी स्टैंडर्ड. ठीक है. सो अपना पिप का मूवमेंट कितने पिप का हुआ है? 2 पिप का. और लॉट साइज जो मैंने बाय किया है वो मैंने बाय किया है 0.1 का लॉट साइज. कोई भी पेयर है, फॉर एग्जांपल वी हैव GBP AUD, राइट, एंड वी हैव बाइड 0.1 क्वांटिटी ऑफ दैट, राइट. सो 0.1 अगर मैंने बाय किया है, सो टेक्निकली इट इज मिनी लॉट. और मिनी लॉट जो है अगर वो 2 पिप डायरेक्शन मूव करता है तो कितने का प्रॉफिट होगा अपने को? $2. $2. आई बात समझ में? Yes. जिसको नहीं आ रही थी कौन है वो? कौन है भैया? सामने आओ. Let it be. Okay, so the thing works like this. Now we have different types of pips are there. There are different types of movements also observed in the market, right? There are different type of market movement. Okay, it falls really well, right? See this. I guess it was supposed to go right here, but okay. So now let's take a test. 1.7794 and right now price is 1.7760. So what is the exact movement in downside? 30 points, 30 pips. 34 points. 34. 30 pips. Who said 30 pips? देखो यार किसकी मैथ इतनी खराब है. पवन. मैं 34 बोला. अच्छा तुमने 34 बोला. और चंद्रगिरी ये होगा. Sir, चंद्रगिरी. me tell, sir. हाँ तो क्यों बोला आपने 30 पिप्स? Mistake, sir. हाँ तो इसमें अप्रॉक्सीमेशन नहीं होता है कि अरे 90 है 60 है तो 30 पिप. नहीं, यू हैव टू बी एग्जैक्ट राइट हेयर. वंस का जो सिग्निफिकेंस है वो हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग उसको कंसिडर करते नहीं है नॉर्मली. ठीक है, आई बात समझ में? एल्स वो भी कंसिडरेबल फैक्टर है. कंसिडरेबल फैक्टर कैसे है देखो, 1.7794 जैसे सेकंड में अपना माइक्रो सेकंड होता है ना, तो सेकंड में जो माइक्रो सेकंड होता है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं नॉर्मली. उसी हिसाब से इस मूवमेंट को भी कंसिडर नहीं करते हैं. आई बात समझ में? अगर कंसिडर करना है तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मत करो. ओके नाउ द थिंग इज दैट कि इतना तो अपने को पता चल गया कि मेरा पिप क्या हो रहा है और मेरा प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा, राइट. नाउ देयर आर 3 to 4 types of normally pip sizes that you will observe. अब पिप साइज क्या होता है? ये कौन सी चिड़िया है?
सो द पिप साइज यहाँ पे अगर तुम देखोगे 1.7754, सो 1.7754, अब ये कितना फास्ट ऊपर और नीचे मूवमेंट देता है, लाइक 54 से 55 हो गया, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसको कितने पे 90 पे देखा था, 98 पे देखा था, अभी ये 54 पे 58 पे है। सो तुमको दिख रहा है कि 40 पिप का मूवमेंट इतना सडन हुआ, तो मतलब अगर तुमने एक का लॉट बाय करके रखा होता तो 400 पिप का तुम्हारा लॉस हो गया। अगर तुमने यहाँ पे बाय कर लिया तो 400 पिप का तुम्हारा लॉस हो गया। अग्री? यस राइट? डॉलर और पिप्स? नहीं, अगर ये 40 पिप फॉल हुआ है, 40 पिप्स फॉल, एंड यू हैव टेकन द लॉट ऑफ वन लॉट, सो वन लॉट 40 पिप फॉल, वन लॉट इज स्टैंडर्ड लॉट। सो अगर एक स्टैंडर्ड लॉट 40 पिप फॉल होता है तो एक स्टैंडर्ड लॉट 10 पिप अगर फॉल होता है तो ये देता है $100 का लॉस। सो ये कितना हुआ है? 40 हुआ है, तो वी मल्टीप्लाइड बाय 4, सो $400 का अपना हो गया लॉस। आई बात समझ में? यस ओके। ओके, अब क्या होता है कि ये GBP AUD है, इसलिए इसका जो पिप का जो स्पीड है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स, अदर पेयर्स। तो यहाँ पे GBP AUD है, चलते हैं अपन यूरो GBP के पास। अब यहीं पे तुम यूरो GBP की पिप मूवमेंट देखो, 0.85598 60 1 0, just focus on this, 9, just sit back and relax, see this, 8 7 3 7, right? ये वाला पेयर काफी स्लो चल रहा है Exactly. So this is what I want you to understand. ये जो है इसकी पिप की जो मूवमेंट है वो स्लो है, अपन ने जो देखा था उसकी पिप की मूवमेंट फास्ट है। सो देयर आर पिप्स, जिन पेयर्स जो होते हैं उनकी पिप्स की मूवमेंट फास्ट और स्लो होती है, मतलब मूवमेंट फास्ट और स्लो होती है। अगर यही सेम चीज़ GBP AUD में यहाँ से यहाँ तक होता, सो ये आपको कम से कम कितना देता मैं बताता हूँ, 30 58, ये नहीं भी कुछ तो आपको 60-70 पिप्स का मूवमेंट होता, राइट? सेम चीज़ यूरो GBP में है तो ये आपको है 30 पिप की मूवमेंट। सो आप देख रहे हो इट इज़ हाफ। आई बात समझ में? यस सेम ग्राफ का कैंडल उतना ही दूर बढ़ रहा है, वो GBP AUD में अगर उतना दूर बढ़ेगा तो वो 60 पिप का मूवमेंट होगा। अगर और किसी पेयर में बढ़ा, फॉर एग्जांपल यूरो GBP में बढ़ रहा है जिसका पिप साइज कम है, तो ये जो है ये 30 पिप का मूवमेंट होगा। आई बात समझ में? यस राइट? ओके कूल। सो दैट्स हाउ पिप साइज वेरीज, पिप मूवमेंट वेरीज। ये अभी तक 59 पे ही लटका हुआ है, यहाँ पे देखो ये 71 पे पहुँच गया है, राइट? तो इस हिसाब से मूवमेंट हो रही है। अब क्या हो रहा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पिप्स। डिफरेंट टाइप ऑफ पिप्स मतलब नॉर्मली 3-4 तरह के पिप्स पाए जाते हैं, मतलब तुमको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर दे। सो एक होता है पॉइंट के बाद 4-5 डिजिट वाला, जैसे ये अपना यूरो USD हो गया, यूरो GBP हो गया, यू कैन सी GBP CAD, GBP AUD, GBP USD। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको कि डिजिट है, पहली डिजिट, उसके बाद पॉइंट है, एंड देन वी हैव 2 3 1 2, देन वी हैव लेट्स से GBP AUD के 1.7772, राइट? तो ये पॉइंट के बाद मूवमेंट है, एक कुछ डिजिट कोई पॉइंट है, उसके बाद डिजिट, पॉइंट एंड देन पिप्स, डिजिट, पॉइंट एंड देन पिप्स, राइट? अगर तुम यहाँ पे यूरो GBP को देखोगे सो इट इज डिजिट, पॉइंट एंड वी हैव पिप्स 8559। ये 4 डिजिट वाले मिल जाते हैं अपने को। आ रही है बात समझ में? अब आपको पता चल गया कि ये जो भी 4 डिजिट वाले पेयर्स होते हैं उनमें पिप कैसे निकालना होता है। आप लोगों को पता चल गया ये बात? यस अब आते हैं 2 डिजिट वालों पे। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट रहा तो क्या करोगे?
जैसे मान लो NZD JPY पे चले गए अपन, NZD JPY पे जाते हैं एंड ये 81.82 पे चल रहा है। यहाँ पे देखो 81.82 पे, यहाँ तो अपना 4 डिजिट है नहीं, तो मैं क्या देखूँगा, कैसे पता चलेगा? सो यहाँ पे ये जो 2 डिजिट है ना, ये 2 डिजिट अपने आप में पिप का मूवमेंट बताता है। मतलब ये 81.82 पे है और 81.2 पे चला गया, फॉर एग्जांपल 02 पे, तो कितने पिप का मूवमेंट हो गया? 80 pips. Exactly. So it is 80 pips movement. I hope you are getting this, right? फॉर एग्जाम्पल 81.82 से इसकी जो मूवमेंट हो गई वो हो गई 82.12 तक, ये अपसाइड जा गया, और ये डाउन साइड जो गया वो 80.82 तक गया, राइट? सो कोई मुझे बताएगा कि अपसाइड कितना ऊपर गया और डाउन साइड कितना नीचे? 30 upside. 30 upside. Okay, any other answers? For downside? 100 downside. 100 downside. Okay. Answer is fine? Yes. Right. So you guys are getting it. यहाँ से अगर 30 पिप का मूवमेंट हुआ, so definitely it reaches to 100. अगर 81.82 में हम लोग ऐड करते हैं 18 मोर पिप्स, सो ये हो जाता है 82.00, राइट? एंड नाउ वी ऐड 12 मोर पिप्स, सो इट इज़ 82.12. सो ये जो 81 है वो चेंज होके हो गया 82 पे, एंड द वैल्यू बिकम्स 12. सो विच मीन्स दैट इट गोज अप 30 पिप्स एंड इट गोज डाउन. तो 100 पिप का जैसे ही मूवमेंट होगा तो ये थर्ड डिजिट मतलब आपका वंस, टेंस, सॉरी अपोजिट, वंस, टेंस एंड 100. कॉन्सेप्ट सिमिलर है, आई बात समझ में? बस डिजिट कम है, राइट? इसमें हम लोग जैसे रिपीट कर दो सर. 1 पॉइंट कर रहा हूँ, 1.0538, राइट? ये अगर है वैल्यू लेट्स से 1.0538, ये अगर अपनी यूरो USD की वैल्यू है, मैं ये भी बताऊंगा ये क्या होता है डेफिनेटली, बट अभी ये समझो 1.0538 अगर यूरो USD की वैल्यू है और यूरो JPY की जो वैल्यू है वो 137.13 है. दिस इज़ वैल्यू ऑफ यूरो JPY. ओके, सो इसमें तो अपने को पता हो गया कि पिप कैसे, इसमें अपना वैल्यू जो था वंस, टेंस, 100 एंड 1000, मतलब 100 पिप का मूवमेंट अगर अप साइड हो रहा है सो इट इज़ 1.0638. सिमिलरली इसमें भी वंस, टेंस, 100 लगाएंगे अपन, वंस, टेंस, 100, मतलब अगर 10 पिप का मूवमेंट डाउन साइड हो रहा है सो इट इज़ 137.10. नॉर्मली जो मूवमेंट होती है ये लास्ट 2 डिजिट को होती है, इसमें भी अगर आप देखोगे तो 2 डिजिट की ही मूवमेंट होती है, क्योंकि आपको 80 से 82 जाता हुआ दिखेगा जो नॉर्मल मूवमेंट है, 80 से 81, 82, 83 ऐसे जाएगा. सो दीज 2 डिजिट्स आर कंसिडर्ड. बट अगर 100 पिप का मूवमेंट हो गया तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? 81.81 से अगर 100 पिप डाउन साइड गिर गया सो इट इज़ 80.81. आगे बात समझ में? वंस, टेंस, 100 इसमें कैसे पता करते हैं? जब 2 डिजिट की बात होती है तो लास्ट वाला ही 2 डिजिट अपन देखते हैं, चलेगा? On last 2 digit we just have to add the amount, right? सॉरी, Like हमें last 2 digit पर pips add कर देने, इतनी ऊपर की होनी चाहिए, right? नहीं, आई डोंट गेट योर क्वेश्चन. Like मान लो 10 pips ऊपर गई, ओके, तो so कोई भी करेंसी है, so हमने प्लस 10 लेट्स से दैट 137.20 पे तुमने बाय किया ये कोई भी करेंसी, यस, और ये 10 पिप ऊपर गई, तो 10 पिप Yeah. ऊपर गई तो तुम लास्ट 2 डिजिट में ये तुम्हारा वैल्यूएशन जो है वो 30 दिखाने लगेगा, यस, राइट? अगर ये 20 पिप्स नीचे चली गई तो ये वैल्यूएशन 137.00 दिखाएगा. 30 पिप अगर नीचे चली गई तो ये वैल्यूएशन 136.90 दिखाएगा, राइट? सो यू कैन जस्ट सिंपली से 730, 720, 700, 690.
सो 720 से 690 की जो वैल्यू है वो 30 पिप्स डाउन साइड। आई बात समझ में? ओके या ओके ग्रेट। सो 2 डिजिट वाले में अपना पिप्स क्लियर है। तो नॉर्मली जो है तुमको देखने को मिलेंगे ये 4 डिजिट वाले, 4 4 4, फिर आएंगे 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2। अब आते हैं सबसे अच्छे पेयर के पास, जो कि मोस्ट वॉलेटाइल, वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल, गोल्ड, XAUUSD। दिस इज नोन एज गोल्ड, दिस इज द सिंबल फॉर गोल्ड, राइट? अब गोल्ड में कैसे होता है, ठीक है? सो गोल्ड की अगर अपन बात करते हैं, सो सी हियर इज आवर गोल्ड, राइट? एंड इसकी जो वैल्यूएशन अगर आप देखोगे सो ये कुछ इस हिसाब से लिखी हुई रहती है 1843.78, राइट? अब 1843.78 है, तो हम लोग इसमें कैसे फाइंड करेंगे कि व्हाट आर पिप्स? ये तो 4 डिजिट तो पहले आ गया, 2 डिजिट बाद में है। कैन एनीवन आंसर मी दैट अगर इसकी जो वैल्यूएशन है वो लेट्स से, नहीं थोड़ा इजी करते हैं, 1843.56 से बढ़ के 1846.56 पे हो गई, तो कितने पिप का वैल्यूएशन हो गया, कितने पिप का मूवमेंट हुआ? 300 30 ये 300 30 वाला कौन है? 30 शांत रहो। हाँ 3 43 से 46 किया ना, तो 30 पिप्स। कहाँ से कहाँ गया? अच्छा ये गोल्ड है ना? 1843 से 1846 गया है ना गोल्ड, अच्छा 30 पिप्स अप हुआ है। 56 तो सेम है, सेम उसके आगे 46 के तो 43 से 46 पे गया है, तो कितने पिप का मूवमेंट हो गया? 30 30। हाँ 43 से 46, ओके। और नेक्स्ट 3.0 30 पिप्स 3.0 3.0 और 1746 थोड़ी है। 3, अरे शांत रहो थोड़ा, 300, ओके। और अरे मेरे ये जो भी हो भाई, मेरे को खुद नहीं आता है, मैं आंसर पूछ रहा हूँ, है ना? कितना हो गया? 300 पिप्स, राइट? चलो हम बताते हैं। अनदर थिंग इज दैट कि अगर अपन गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में जो आप मूवमेंट देखोगे और जिस हिसाब से गोल्ड में अपन फाइंड करते हैं, सो ईजीएस्ट वे, ये पॉइंट के बाजू वाला जो डिजिट है ना, इसको उठाओ, और पॉइंट के राइट साइड वाला जो डिजिट है उसको उठाओ। तो लेफ्ट वाले को हमने उठाया और राइट वाले को हमने उठा लिया, कितना हो गया? 35। यहाँ पे हमने लेफ्ट वाले को उठाया और राइट वाले को उठाया, कितना हो गया? 60 राइट? सो 35 से 65 के जाने के बीच में कितने पिप का मूवमेंट हो गया? 30 राइट? सो गोल्ड में जब भी आप पिप्स देखोगे तब नॉर्मली आप जो देखोगे, आप इसको कर दो नेग्लेक्ट, इसको मत देखो थोड़ा देर के लिए, उसको रहने दो साइड में। इसमें जो 1s 10s 100 अपनी आती है वो आएगी 1s 10s 100, राइट? 1843.65 में अपना जो ये 65 ऐसे लिखा रहा है, 3 डिजिट लिखा रहा है ना, ये तो पहले अपन नेग्लेक्ट कर दिए, इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है? समझने के लिए इस बात को ध्यान रखो, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया अपन ने। सो इसकी जो वैल्यूएशन अब क्या हो गई? 1843.5, राइट? सो ये 3.6 से 3.5 पे आ गया, कितने पिप का मूवमेंट हो गया? 1 पिप का मूवमेंट हो गया। पॉइंट के पहले वाला डिजिट, पॉइंट के बाद वाला डिजिट, पॉइंट के पहले वाला डिजिट, पॉइंट के बाद वाला डिजिट, पॉइंट हटा दो,
पिप्स देख लो। आई बात समझ में? नॉर्मली ऐसा करेंगे। इसमें जो अपना 1s 10s 100 है वो तुम ऐसे देखोगे, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट कंसिडर करोगे, ये 1s है, ये 10s है और ये तुम्हारा 100 है। सिमिलरली 1s 10s और 100, तो अगर ऐसे भी अगर तुम देखते हो 1843.6 से गया 1840.5, ठीक है। सो नॉर्मली तुम 100 पिप का भी अगर मूवमेंट ऑब्जर्व करोगे, सो 1s 10s 100, सो 436 से ये आया है 405 पे। कितने पिप का मूवमेंट डाउन साइड है? 3.1 30.1। ये पॉइंट कहाँ से आ गया? ये 6 है ना ऊपर, 43.6 क्या है? 31. 31 सॉरी, राइट। अरे इन पॉइंट को हटा के ही तो कंबाइन कर रहे हैं ना। 36 पॉइंट हटा दो, पॉइंट ये पॉइंट हट गया तो ये तो सिर्फ 5 बचा, ये पॉइंट हटा दो 36 बचा। सो 36 5 कितने का डिफरेंस है? 31 का। तुम अगर इसको भी अगर कर लो इंक्लूड, तो ये 436 हो गई, ये 405 हो गई। पॉइंट सीधा उड़ा दो, ठीक है, पॉइंट रखो ही मत। पॉइंट उड़ा दिया अगर अपन ने 1843.5 पॉइंट उड़ा दिया और 3 डिजिट को कंसिडर कर लिया। आई बात समझ में? गुड। सो इस हिसाब से गोल्ड की मूवमेंट हुई। चलो टेस्ट लिया जाए। 1843.60 लेट्स से, अगर ये देता है 72 पिप का मूवमेंट डाउन साइड में, तो व्हाट इज द वैल्यूएशन? जल्दी, आई वांट क्विक आंसर्स। एज यू गाइस आर ट्रेडर, यू नीड टू बी क्विक इन मैथ्स। 1773.6 1773.6 yes okay. Please tell me your name one by one. 72 बोला था या फिर कितना बोला था? 72 72 174360. 174360 okay. और 1836. 1836.4 1839.4 1839.4 ओके। और I'll go with 1771.60. ओके, लॉट्स ऑफ गेसिंग्स। मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये पॉइंट उड़ेगा बीच से, ठीक है, पॉइंट मैंने उड़ाया, 1s 10s 100 मैंने लिया, लिसन टू मी, 1s 10s 100 अगर मैंने लिया, सो टेक्निकली ये 3 डिजिट कितने पिप का है? ये 3 अपना पिप हो गया। अगर पॉइंट उड़ा के मैंने तीनों को कंसिडर किया 1s 10s 100, सो टेक्निकली इट इज, यू कैन से 436 पिप्स। And this 436 pips if goes -72 downside, so इसमें कितने पिप का मूवमेंट हुआ माइनस में? 72. Right. So now what is the value? 1836.4. So the value of this, only this is 436 में से 72 गया तो कॉमन सेंस इट इज 364. अब 364 यहाँ डाल दो, क्योंकि 1000 और 10,000 की मूवमेंट नहीं हो रही है इतनी आसानी से। 100 1s 100 10s और 1s की मूवमेंट होती है, राइट? तो ये जो वैल्यूएशन है 1836.4 की हो जाती है, जो कि ये आपका आंसर है। आई बात समझ में? Right. Yes. एक और टेस्ट, 1842.7 और मैंने इस पर्टिकुलर गोल्ड को इंक्रीज किया है 100 पिप्स से। व्हाट इज द वैल्यू? 1852.7. दिस 1852.7.
1852.7 ओके और Same. 1852.7. ग्रेट नाउ यू गाइज नो दिस राइट सिंपल बस ये 3 डिजिट ध्यान में रखो गोल्ड तुम्हारे पास आगे बात समझ में चलो अब एक और तरीका बताता हूँ ये है ट्रेडिंग व्यू का तरीका ट्रेडिंग व्यू जिसको नहीं पता है हम लोग एक सेपरेट सेशन लेंगे ट्रेडिंग व्यू पे राइट कि हाउ टू यूज़ दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग व्यू बट एज ऑफ नाउ जस्ट सी दिस वी हैव अ स्केल टूल राइट हेयर ओके इस पर मैं क्लिक करता हूँ और जहाँ से मेरे को पिप्स मेज़र करना है सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर सेल किया होता सो इस मोमेंट से मुझे मेज़र करना है कि डाउन साइड कितना पिप गया है सो मैं इसको खींचता हुआ डाउन साइड लेके आऊँगा ओके और उसके बाद जो यहाँ पे जो वैल्यूएशन है ये कितनी लिखी हुई है 2026.5. 2026.5 तो इसमें से मैं इसको भूल जाऊंगा तो ये जो मूवमेंट है ये 202 पिप्स की हो जाएगी आई बात समझ में बस पॉइंट इधर कर देना है सो ये 202 पॉइंट की मूवमेंट हो गई गोल्ड के लिए राइट ये सिर्फ गोल्ड के लिए ही अपने को घटाना पड़ता है बाद बाकी अगर मान लो कोई और पेयर है फॉर एग्जांपल AUD कैड में आ जाओ तो AUD कैड में अपन स्केल पे गए इस पर क्लिक किया डाउन साइड गए तो यहाँ पे कितने पिप की मूवमेंट दिख रही है ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू पिप मूवमेंट है कितने पिप्स की है अपसाइड भी कर क्या हाँ अपसाइड भी कर सकते हैं डेफिनेटली राइट सो यहाँ पे -52 है मतलब डाउन साइड मूवमेंट है अगर अपन अपसाइड मेज़र करेंगे या अपसाइड के लिए देख रहे हैं सो ये ब्लू होगी और ये ऐसे मूव करेगी राइट सो यहाँ पे आपको कोई माइनस दिख रहा है नहीं सो ये पॉजिटिव है करेक्ट ओके सो इसमें 51 हुआ है सर सॉरी इसमें जो मूवमेंट है ये 52 पिप्स की मूवमेंट है 51 हुआ हाँ और ये 51 पिप की मूवमेंट है ये अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो ये जो है ये 50 लेट से यहाँ पे ये इस लेवल की जो मूवमेंट है यहाँ पे ये 51 पिप्स की मूवमेंट है नीचे से आई बात समझ में आई या कोई डाउट है साउंड नहीं आ रही सर क्या कौन है क्या बोल रहे हो क्लियर बोलो यार माइक ऑफ है सर माइक ऑफ है भाई फिर इतना टाइम नहीं है यार चलो इसने लिखा है कुछ माइक ऑफ ओके सो आगे बात समझ में अपन अगर तुम लोग दिमाग नहीं लगाना चाहो तो पिप हम लोग यहाँ से भी मेजरमेंट टूल पे जाओ माइक ऑफ सर उफ। अरे यार मेरी माइक ऑफ थी ओके वही तो बता मुझे लग रहा है तुम लोगों की माइक ऑफ थी चलो कोई नहीं तो यहाँ पे जो है अपन स्केल पे जाते हैं इस पर क्लिक करते हैं एंड वी जस्ट मूव अप इसको जहाँ तक नापना है वहाँ तक लेके चले जाओ ये तुम्हारा मूवमेंट बता देगा कि भाई यहाँ से जो उठ के यहाँ तक गया है तो इसकी जो टोटल मूवमेंट है 48 पिप की मूवमेंट है राइट और जो साथ में है ये 10 घंटे 15 मिनट ये टाइमिंग हाँ बता देते हाँ हैं इतने में ये जो है 10 घंटे 15 मिनट में जो है इतने पिप की मूवमेंट हुई है राइट ठीक। यहाँ पे वॉल्यूम भी दिखा देगा तुमको कि कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है इसके बीच में यहाँ पे बार्स लिखे हैं मतलब कितने कैंडल स्टिक्स आए हैं इस इतने से इतने के बीच में इफ़ यू काउंट सो इट विल बी 41 कैंडल स्टिक्स राइट राइट अब अगर तुमको कन्वेंशनल वे से देखना है तो यहाँ पे देखो 0.9022 0.9022 और यहाँ पे ये कहाँ तक हम लोगों ने मेज़र किया है 0.9071 सो 22 से
7-1 का डिस्टेंस कितना होता है बताओ? 49 राइट? 49 सर। 49। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये मूवमेंट इसमें आ जाती है, जिसको हम लोग कर देते थे नेग्लेक्ट। तो इससे कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली मूवमेंट याद रखो कि सिंपल। देखो जब अपन ट्रेड करते हैं सो वी आर लाइक, मैंने ऐसे उठाया जैसे मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैंने गोल्ड में शॉर्ट किया है, डेफिनेटली मैं पहले बाय करने वाला था इसको, अगर ये नेकलाइन ब्रेक करता तो मैंने नेकलाइन ब्रेक नहीं किया तो मैंने इसको शॉर्ट किया, ओके। सो गोल्ड में मैं क्या, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ सो डेफिनेटली मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल पे रहेगा, ये वाला लेवल, राइट। अब मैं बताऊँगा स्टॉप लॉसेस वगैरह क्या होते हैं। तो स्टॉप लॉस कितने पिप का है मेरा, ये कितने पिप का है ये लेवल? 68 पिप का, राइट। सो मैं देखता हूँ अच्छा मेरा स्टॉप लॉस 70 पिप के आसपास है और मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम 130 पिप तो मिल ही जाएंगे मेरे को, या 140 मान लो। तो आई एम लाइक ओके मेरा स्टॉप लॉस है वो 70 है, ये 140 है, ठीक है 1:2 ट्रेड है, ओके ग्रेट, गुड ट्रू वो, राइट। सो इस हिसाब से अपन कैलकुलेट करते हैं। आवाज़ कट रही है सर। ओके नो इशू। तो गोल्ड अभी अपने ट्रेंड लाइन पे है, जिनको पता है गोल्ड ट्रेंड लाइन क्या होती है वो लोग अपना ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, अगर ये रिवर्सल लेता है या यहाँ से अपसाइड जाता है तो। अगर आप देखोगे गोल्ड को सो डेफिनेटली इट इज़ टेकिंग सपोर्ट ऑन ट्रेंड लाइन। बाद बाकी के लिए ये कुछ नहीं था, मैंने कुछ नहीं बोला अभी, ठीक है। चलो तो आगे बात यहाँ तक समझ, आज के लिए बस इतना ही।